So guys, in last class, we were talking about the total derivative concept and chain rule of partial differentiation. And we have done some cases regarding the total derivative and chain rule of partial differentiation. And I hope you all revised at the previous class, because I already told you that this class is very, very important, and the revision is very, very important. Anyways, today we will be discussing first the differentiation of implicit functions, and after that we will do some questions based on total derivatives and chain rule of partial differentiation. So please give me a second so that I can present my screen. So I hope the total derivative concept is very clear to everyone. This was the case 1, this was the case 2. And now case 3. Differentiation of an implicit function. It's again very important. Differentiation of an implicit function. Guys, आपको याद है 12th क्लास में implicit function का आप differentiation कैसे करते थे? अगर मैं आपको ये फंक्शन दे दूं, अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए implicit function क्या होता है? Can anybody tell me what is implicit function? Abhik? Yes sir. Yes. सर जहाँ पर एक फंक्शन होता है ऑफ टू वेरिएबल, जिसका अगर हम लोग मतलब डिफरेंशिएशन करें तो उसका 0 आता है आंसर। नो, ये आपने स्लाइड पे जो ऑलरेडी गिवन है उसको देख के कॉपी मारा है, लेकिन एक कहावत है, नकल में भी अकल चाहिए होती है अभी। एनीवेज, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार मैं इसको एस्केप करता हूं या फिर यहीं बता देता हूं। देखिए दो टाइप के फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एफ एक्स। It's a function in x and y. Abhi, am I clear? Yes sir. ठीक है, ये इसका मतलब ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब ये है कि ये x और y में एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमने y को x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, या फिर x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स y. Again, this is a function of x and y, and x can be represented in terms of y only. तो ये जो functions होते हैं, these functions are called explicit functions. Like something like that, f of gx and g of fx, like we did in explicit functions. मतलब ये है कि if you can represent one variable in terms of other variable purely, then that function is called explicit function. Y is equal to fx और x is equal to function of x. लेकिन अगर मान लीजिए ये मैं लिखूं f of x, y is equal to 0, तो ये फंक्शन भी देखिए x और y में फंक्शन है। ये फर्स्ट वाला फंक्शन भी एक्स वाई वेरिएबल में फंक्शन था, सेकंड वाला फंक्शन भी एक्स वाई वेरिएबल में फंक्शन था, और ये थर्ड वाला भी एक्स वाई वेरिएबल में ही फंक्शन है। लेकिन डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि इस एक्स वाई वेरिएबल के फंक्शन में आप एक्स को वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या वाई को एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो दीज फंक्शंस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस।
both functions are both functions are of x and y variable, but in explicit functions you can represent one variable in terms of other variables, but in implicit function you cannot represent one variable in terms of other variables. Now is it clear to everyone what is implicit function? So if you are talking about two variable implicit function, then the standard form of these kind of functions will be f of xy is equal to 0, which cannot necessarily be solved for one of the variables, say x, in terms of other variable y. There is an example of implicit function, x cube plus y cube is equal to 3axy. Pragya, can you find the value of x in terms of y here? Yes, sir. X cube plus y cube is equal to 3axy. In this function, can you find the value of x purely in terms of y? So we can write x cube as f of y whole cube plus No. y cube equal. आप x का वैल्यू y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ध्यान रखना, x का वैल्यू y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब ऐसा होना चाहिए. x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या आगे से? Yes, sir. कैसे लिखेंगे बताइए? So we can put x equals to f of y in place of x cube. मेरा सीधा सा क्वेश्चन ये है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy. आप यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड करके बताइए इन टर्म्स ऑफ y ओनली. कैन यू फाइंड इट? No, sir. वी कैन नॉट फाइंड इट, क्योंकि x की वैल्यू जब आप फाइंड करने बैठेंगे इन टर्म्स ऑफ y ओनली, तो डेफिनेटली उसमें भी x आएगा. Yes, sir. Just a second, please hold on. Cash किसको चाहिए? 300 नहीं, चेंज नहीं, 500,000. हेलो, यस, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया आपको? अच्छा, क्या आप इसे y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अंकिता, No, sir. अंकिता, कैन यू हियर मी? Yes, sir. क्या आप इसे y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Ankita, a lot of disturbance from your side. Please mute yourself. Okay, सुहृद, क्या हम इस फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सुहृद, यस सर. इस फंक्शन को हम y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? आई थिंक यस. कैसे? फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x ओनली. आदर्श, Yes, sir. can you find the value of y in terms of x only? Sir, in x cube plus y cube, that equation. Yes, in that equation. No, sir. We cannot find. आपको मैं इतनी देर से समझा रहा हूं सब लोगों को, आपका दिमाग कहां है सब लोगों का?
मैं आपको समझा तो रहा हूं, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर्म का फंक्शन है ये, और ये इम्प्लिसिट फॉर्म में है क्योंकि हम यहाँ पे x को प्योरली y की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या फिर y को प्योरली x की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये x y का फंक्शन है बट एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं है, ये इम्प्लिसिट फॉर्म में है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो समझ में आया सबको कि व्हाट इज इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एंड व्हाट इज एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ एनी फंक्शन? एनी डाउट एनीबॉडी? यस सर। सर इसको 0 कब करना होगा, मतलब ये फंक्शन इक्वल टू 0 है, मतलब कि डिफरेंशिएशन राइट वाले टर्म को लेफ्ट में, डिफरेंशिएशन कहां से आ गया बेटा? इसमें कहां पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव? कहीं पे भी डेरिवेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ नहीं लिखा है। तो फिर f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 के लिए सिंपल 3a(x_y) को लेफ्ट साइड में ले जाइए। सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a(x_y) इज इक्वल टू 0 हो गया f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर? यस सर। ओके, अब हमें टॉपिक ये है डिफरेंशिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन करना है। तो आपने 12th क्लास में किया है, कोई मुझे बताएगा कि आप अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और dy अपॉन dx कैसे फाइंड करेंगे? 12th क्लास में पढ़ा है। जितेंद्र, कैन यू हियर मी? यस सर। जितेंद्र? यस सर। यस, इस फंक्शन का मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके dy अपॉन dx फाइंड करना है। कैसे किया था 12th क्लास? सर 3x², मतलब Yes. x का तो नॉर्मल बेसिस x तो इंडिपेंडेंट है तो हो जाएगा उसमें। आप तो कंटिन्यू बोलते जाइए। 3x² प्लस 0 प्लस 0 कहां से हो गया? 0 कैसे हुआ? y क्यूब का। क्यों? पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए बोला है क्या मैंने? नहीं तो फिर सर यस, सबसे पहले x3x² फिर यस, प्लस 3y² हाँ इक्वल टू 3, एक को कॉमन ले लेंगे एक बार में साइड अरे में। भाई तुम्हारी मैथ्स को क्या हो गया सबकी? तुम लोगों ने पढ़ाई लिखाई सब बंद कर रखी है क्या? हो क्या रहा है तुम लोगों को? डेरिवेटिव से निकालना पड़ेगा। 3x² dx प्लस 3y² dy। यस, 3x² प्लस 3y² dy by dx इज इक्वल टू 3a टाइम्स ऑफ x इंटू dy by dx प्लस y, ब्रैकेट बंद। ये भूल Yes, गए sir. क्या आप लोग? Yes, sir. आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा हुआ ये। तो अगर ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ होता है और अगर आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy by dx का वैल्यू फाइंड करना होता है तो आप कर लेते बाय यूजिंग 12th क्लास अप्रोच। लेकिन उसी चीज को मैं दूसरे तरीके से अब आपको बताऊंगा। dy by dx को आप दूसरे तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसे? देखिए, इस फंक्शन का आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। कल मैंने टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बताया था। फंक्शन है हमारा f ऑफ एक्स वाई, तो मैं यहां लिख देता हूं f इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, f इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो मैंने कल टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको। df का वैल्यू क्या होगा? कल मैंने आपको समझाया था। क्या वैल्यू होगा df का? बताएगा कोई? कल मैंने समझाया था आपको df अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा? सर df by dx into Del dx by dx del f by del x प्लस into सर into dx by dx। वो dx by dx तो 1 हो गया ना, del f by del y into Plus, dy by dx। into यही dy होगा? by dx। yes sir। यही होगा? yes sir yes। वेरी गुड। और फंक्शन f का वैल्यू 0 है तो df अपॉन dx का वैल्यू भी 0 होना चाहिए।
Is it correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Since function of x y is 0, that is f का value 0 है, तो differentiation of f with respect to x, that is df upon dx will be 0. तो यहाँ df upon dx का जो भी value आया मैंने उसको 0 के equal कर दिया. Is it okay? Yes, sir. तो ये वाली इक्वेशन आपकी ये वाली है, देखिए ध्यान से. Del f upon del x into dx upon dx plus del f upon del y into dy upon dx is equal to 0. Any question? अब यहां से आप dy upon dx फाइंड कर लीजिए. So dy upon dx is equal to minus times of del f upon del x divided by del f upon del y. That is minus times of fx divided by fy. तो इम्प्लिसिट फंक्शन अगर दो वेरिएबल का है तो आप उससे dy by dx का वैल्यू डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं. Sir, not understood the last part. कौन सा लास्ट पार्ट? ये समझ में आ Sir, गया? अभी- लाइन ये वाला आ गया? नहीं सर, वही वाला dy dx equal to minus del f del by बेटा, del x. हाँ तो इस इक्वेशन से dy by dx का वैल्यू फाइंड करो. क्या होगा? क्या होगा? X. कॉपी में सॉल्व करो. हाँ सर, ठीक है समझ गया. सिंपल सी है चीज यार. हाँ dx अपॉन dx का वैल्यू तो 1 हो गया और dy अपॉन dx का वैल्यू हो गया माइनस del f अपॉन del x डिवाइडेड बाय del f अपॉन del y. दैट इज माइनस ऑफ fx अपॉन f. एनी क्वेश्चन? तो 12th क्लास में जो आपने क्वेश्चंस किए थे इम्प्लिसिट फंक्शन के, उसमें dy by dx आपने फाइंड किया था. अब उस dy by dx को आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली. जो गिवन फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए, गिवन फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए और उन दोनों को डिवाइड करके नेगेटिव साइन लगा दीजिए. आपका वही आंसर आएगा जो आपका 12th क्लास में dy by dx का आया था. समझ में आया? यस सर. अब मैं ये वाला ही एग्जांपल लेके आपको करवा देता हूं. देखिए जस्ट अ सेकेंड, ताकि आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. x2 plus y2 is equal to 3axy. आप लोग पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करते हो यार. मैं बार बार बोलता हूँ रिवाइज करके आना, रिवाइज करके आना. आप लोग रिवाइज ही नहीं करते हैं. छोटी सी चीज में आपने कितना टाइम निकाल दिया देखिए आप. Okay, so the function is f of x y is equal to x cube plus y cube minus 3axy is equal to 0. This was the function or not? यस सर. चलिए अब आप फाइंड कीजिए fx. fx का मतलब है del f अपॉन del x. तो del f अपॉन del x फाइंड करते हैं. 3x स्क्वायर, इसका 0 हो गया, माइनस 3ay. अब आप फाइंड कीजिए del f अपॉन del y, मतलब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन टेकिंग x एज अ कांस्टेंट. तो इसका 0 हो गया, 3y स्क्वायर माइनस 3ax. अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए अगर आपको dy by dx फाइंड करना है तो. सो dy by dx, अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, माइनस टाइम्स ऑफ fx डिवाइडेड बाय fy, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ fx आपके सामने ये रहा 3x स्क्वायर माइनस 3ay डिवाइडेड बाय fy ये रहा 3y स्क्वायर माइनस 3ax.
3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, तो आपका आ जाएगा माइनस टाइम्स 3 ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर minus ax. So this will be the dy by dx for this implicit function. Any question? Understood, sir. Understood. अब आप 12th क्लास में जैसे किया था जितेंद्र, आप एक बार अपनी कॉपी में कीजिए और देखिए आंसर सेम आ रहा है क्या। जितेंद्र फटाफट कीजिए आप अपनी कॉपी में, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, आप लोग भी कीजिए। 12th क्लास में कैसे किया था, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx माइनस 3a कांस्टेंट ब्रैकेट x y का प्रोडक्ट रूल से x इंटू dy बाई dx प्लस y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। dy वाले dy बाई dx वाले टर्म्स को साथ में ले लीजिए, बाकी टर्म्स को राइट में ले जाइए और फिर dy बाई dx कॉमन लेके सॉल्व कीजिए, आपका यही आंसर आना चाहिए। चेक इट आउट राइट नाउ। Anybody else got it? Yes, sir. What's your name? Pragya. Pragya, have you got the same answer? Yes, sir. Very good. तो आपको ध्यान रखना है, अगर दो वेरिएबल का फंक्शन हो f of x y is equal to 0 इम्प्लिसिट फॉर्म में और आपको dy by dx फाइंड करना हो तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है। Yes, sir. अब इसको हाँ It is coming, sir. yes coming from where? Sir means old method. From Jaipur it is coming. No, sir, from memory. That old method. कीजिए आदर्श। जी सर। यस आप आदर्श ही बोल रहे हैं? जी सर। ठीक है कीजिए फटाफट कीजिए। हो गया सर। डन, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, dy अपॉन dx, तो देखिए x के सामने वाला x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है और y के सामने वाला y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है और फिर नेगेटिव साइन आपको लगाना। x के सामने वाला x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है और y के सामने वाला y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है और नेगेटिव साइन है। अगर मान लीजिए इस इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए मैं आपको dx अपॉन dy फाइंड करने के लिए बोलूं, तो जितेंद्र व्हाट विल बी द फॉर्मूला? किसका? For this function f of x y is equal to 0 for this implicit function, जैसे अभी हमने dy by dx के लिए फॉर्मूला लिखा है, अगर मैं dx by dy के लिए लिखूं तो क्या होगा? Minus f of y by f of x. वेरी गुड, माइनस f of y by f of x। अभी मैंने समझाया है x के सामने वाला x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, y के सामने वाला y के रेस्पेक्ट में पार्शियल विद नेगेटिव साइन। ठीक है जितेंद्र? यस सर, ये क्लियर है। गॉट इट? ठीक है। प्रीवियस वाला क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल वाले में मैं कंफ्यूज हो गई था। आवाज नहीं आ रही है साफ आपकी। नॉर्मल वाले डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज। तेज बोलिए जितेंद्र, तेज बोलिए। सर टोटल डिफरेंशिएशन में भी डाउट है। इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें नहीं है। तो फिर बाद में पूछना टोटल डिफरेंशिएशन का डाउट, ठीक है? ओके। अगर मान लीजिए फंक्शन 3 वेरिएबल का है, इम्प्लिसिट फंक्शन,
f of x comma y comma z is equal to 0. If there is a function of 3 variable, if there is an implicit function of 3 variable, and we want to find out, for example, dz upon dx, can you tell me, can anybody tell me what will be the value of dz upon dx for this 3 variable implicit function? minus f of Minus f x. del f upon del x. fx by fz. Yes, del f upon del x divided by del f upon del z. लेकिन ध्यान रखना, ये dz upon dx नहीं आएगा, ये del z upon del x आएगा. ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? जिसने मेरी हर एक क्लास अटेंड किए ढंग से वो सब समझ जाएगा. सर 3 वेरिएबल फंक्शन है. देखिए यहाँ पे dz upon dx हम फाइंड नहीं कर सकते, हम del z upon del x से फाइंड कर सकते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब 2 वेरिएबल का फंक्शन होता है तो एक बात क्लियर होती है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. या तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा या x डिपेंडेंट वेरिएबल y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. तो किसी एक का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना होता है तो हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं इजीली. लेकिन यहां पे अगर हम z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z इज ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल. y का कर रहे हैं तो y इज ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल x एंड z, एंड x इज ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स y एंड z. अगर 2 वेरिएबल होते तो कंफ्यूजन ही नहीं होता, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, तो या तो dy by dx फाइंड करेंगे या dx by dy फाइंड करेंगे. लेकिन यहां पे 3 वेरिएबल है. इस केस में एक वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन होगा और एक वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल का जब फंक्शन होता है तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं. दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Yes, sir. Okay. If it is clear, then tell me what will be the value for this function. What will be the value of del y by del x? Yes, tell me. minus f of fy by fx. No. fy by fx. No. fx by fy. fx by fx. Yes. ये तो है. अच्छा, इस फंक्शन के लिए मुझे बताइए del y अपॉन del z का वैल्यू क्या होगा? minus fz by fy. Minus fz by fy. fz by fy. So I think the concept of implicit function and differentiation of implicit function to clear everyone. Any question anybody wants to ask? Very good. So this was the third case, differentiation of implicit function. The screen is visible to everyone now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes sir. Yes, sir. ये इम्पोर्टेंट नहीं है पॉइंट, तो इसको हम स्किप कर देते हैं. इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस फॉर्मूले का कोई लॉजिक नहीं, आप वैसे भी फाइंड कर सकते हैं. सो इट्स मीनिंगलेस. Now let's do one question. Find the total differential coefficient of x square y with respect to x when x and y are connected by this relation x square plus xy plus y square is equal to 1. तो सबसे पहले देखिए
आपको टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका फाइंड करना है? इस फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जिसका भी टोटल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है उसे आप u एज्यूम कर लीजिए। लेट u इज इक्वल टू x स्क्वायर y। ये देखिए, ये मैंने u एज्यूम कर लिया, u इज इक्वल टू x स्क्वायर y। अब आपको u फंक्शन का, u इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, और इसका आपको टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या टोटल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है du अपॉन dx। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैप बनाइए। फॉर दिस क्वेश्चन u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, यू कैन सी वेरी इजीली, and x and y are dependent to each other by this relation. X and y are not independent. X and y are dependent to each other by this relation. ठीक है? तो u is equal to x square y. So du upon dx by the total differentiation formula. Du upon dx will be del u upon del x into dx upon dx plus del u upon del y into dy upon dx. This is clear to everyone? Yes, sir. Yes. Good, very good, very good. ठीक है, अब इसे evaluate करते हैं। So del u upon del x, u का वैल्यू x स्क्वायर y है, तो इट्स del upon del x of x स्क्वायर y पुट कर दिया। del u upon del y मतलब del upon del y of x स्क्वायर y, del upon del y of x स्क्वायर y multiplied with dy by dx। तो del upon del x of x स्क्वायर y का वैल्यू सिंपल है, 2xy हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। del upon del y of x स्क्वायर y का वैल्यू सिंपल है, x स्क्वायर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और dy by dx एज इट इज। अब कोई मुझे बताएगा कि ये dy by dx कहां से फाइंड किया जाए? सर वो रिलेशन से x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। करेक्ट, हाउ, कैसे? सर वहां से एक बार fx निकाल लेगा और एक बार fy वेरी निकाल। गुड, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये dy by यस, ये dy by dx आपको इस इम्प्लिसिट फंक्शन से फाइंड करना है। तो चलिए फिलहाल du अपॉन dx को मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, और हम अलग से dy by dx का वैल्यू इस इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग दिस फंक्शन एज phi, so phi is equal to x square plus xy plus y square minus 1 is equal to 0। आपको हमेशा फंक्शन f of xy is equal to 0 के फॉर्म में लेना है, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन तभी कहलाता है जब वो f of xy is equal to 0 की फॉर्म में हो। तो हमने यहाँ ले लिया phi of xy is equal to 0 की फॉर्म में, और dy by dx यहाँ से डायरेक्ट फाइंड किया, माइनस phi x डिवाइडेड बाय माइनस phi x डिवाइडेड बाय phi y। दिस इज phi x divided by phi y. That is differentiation of phi with respect to x partially divided by differentiation of phi with respect. Sir, you are muted, sir. Sir, you are muted. Now you can, I think, hear me. Yes, Yes. sir. Yes, sir. यार मुझे किसने म्यूट कर दिया भाई? आप में से किसी ने म्यूट कर दिया मुझे? नहीं सर। ओके, ठीक है। स्क्रीन इज विजिबल आई थिंक, राइट?
फिजिबल ना? Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे। ओके तो dy upon dx is equal to minus del phi upon del x divided by del phi upon del y। तो माइनस टाइम्स ऑफ del phi upon del x का वैल्यू आप यहां से फाइंड कर लीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ phi विद रिस्पेक्ट टू x, और del phi upon del y का वैल्यू आप यहां से फाइंड कर लीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ phi विद रिस्पेक्ट टू y। सो इट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस y, ये 2x प्लस y, और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया x प्लस 2y प्लस 2। सो दिस इज dy by dx। Now put this dy by dx in equation 1 and get the value of du upon dx। Simple। तो हमने dy by dx का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो हमें du upon dx से मिल गया, ये सॉल्व कर लिया। Any question? Anybody wants to ask something? Please tell me. Any doubt? No, sir. No, sir. Very good। नो डाउट आपने ये क्वेश्चन भी 12th क्लास में किया होगा। इफ x रेज टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। याद आया? Yes, sir. बिल्कुल किया होगा आप लोगों ने। यहां पे आप इम्प्लिसिट फंक्शन की अप्रोच से करेंगे, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। तो इसे आप कोई फंक्शन एज्यूम कर लीजिए। सो लेट u इज इक्वल टू x रेज टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर x माइनस a रेज टू द पावर b इज इक्वल टू 0। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड dy by dx, then what will be the formula? Minus times of del u upon del x divided by del u upon del y। Minus times of ux divided by uy। Is it clear? Yes, sir. चलिए आदर्श, u आपके सामने है, मुझे del u upon del x का वैल्यू बताइए आप। आदर्श इतना टाइम नहीं है हमारे पास। Sir, this log function, I have some problem. लॉग के कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है। del u upon del x का मतलब क्या होता है आदर्श? Sir, means What is the meaning of del u upon del x? Just tell me what is the meaning. del u by del x into del x by del x. मैं पूछ रहा हूँ del u upon del x का मतलब क्या होता है, इतना सा बताइए मुझे आप बस। So differentiation with respect to x, partial difference. Partial differentiation of u with respect to x taking y as a constant। Yes, sir. ठीक है, u आपके सामने है तो आपको del u upon del x फाइंड करने में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। Sir, वेरिएबल पे वेरिएबल है। क्या? वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है ना? नहीं है वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आदर्श। If you are finding the value of del u upon del x, then you will assume y as a constant। कितनी बार बोलूं मैं आपको? तो y अगर constant assume करोगे तो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल कैसे हो गया? Then x y to the power y minus 1. Yes, y into x raised to the power y minus 1। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? इसे इसको आप कैसे ट्रीट करोगे? इसे ट्रीट करोगे आप x raised to the power c, x raised to the power 3, x raised to the power 4, right? Yes, sir. Right, sir. Others, can you hear me? Right, sir. Right. So what will be the differentiation of x raised to the power y with respect to x only, taking y as a constant?
yx to the power y minus 1. एब्सोल्युटली करेक्ट। तो y x रेज टू द पावर y माइनस 1 प्लस, अब इस पे आ जाइए, इसका बताइए आदर्श, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। सर xy log y. देखिए अगर आपके पास 2 रेज टू द पावर x होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता आदर्श? टू रेज टू द पावर x log 2, यही होता। Yes sir, yes sir. तो y रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर x का क्या होगा? y रेज टू द पावर x log 2 log y, log x. Okay. log y, Yes sir. y रेज टू द पावर x log y। आप सब लोग भी समझ रहे हैं मेरी बात? बाकी लोग? Yes sir. Yes sir. वेरी गुड। और a रेज टू द पावर b का डिफरेंशिएशन क्या होगा आदर्श x के रिस्पेक्ट में? 0 sir. 0। वेरी गुड। तो आपका del u अपॉन del x बन गया ये वाला, ये देखिए, y x रेज टू द पावर y माइनस 1 प्लस y रेज टू द पावर x log y। सिमिलरली del u upon del y. Suhit, can you hear me? Yes sir. U function is given to you. Now find the value of del u upon del y, keeping x as a constant. Del u upon del y. Del u upon del y. No doubt x is a constant. Yes. लग गया? Got it. Yes, बताइए सूरज, बताइए। X in x y to the power x minus 1 plus Wrong. क्या बोल रहे हो? वापस बोलो। x y to the power x minus 1 plus x y raised to the power x minus 1, correct? plus Plus x to the power y log x. very good, x to the power y log x. Anybody wants to say something about it? Right sir. Correct. Correct sir. So del u, Right sir. yes, so del u upon del y is equal to this, x raised to the power y log x plus x y raised to the power x minus 1. Now dy by dx is equal to minus times of del u upon del x divided by del u upon del y. This is your answer. अच्छा, 12th क्लास में इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया था? 12th क्लास में इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया था? कोई बताएगा? याद है किसी को? Sir, by taking log on both sides. हाँ, log दोनों तरफ लेना पड़ेगा, लेकिन हमें पहले अलग अलग फंक्शन को अलग अलग लेना पड़ेगा। x रेज टू द पावर y को कुछ और फंक्शन u लेना पड़ेगा, y रेज टू द पावर x को w लेना पड़ेगा, फिर log लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ डायरेक्ट log ले लिया तो log ऑफ a प्लस b का कोई मतलब ही नहीं होगा। हाँ, दोनों अलग वेरिएबल हो जाएगा। हाँ, तो इसको आपको एक अलग वेरिएबल b एज्यूम करना पड़ेगा, इसको एक अलग वेरिएबल w एज्यूम करना पड़ेगा, फिर v इज इक्वल टू x रेज टू द पावर y का log लेके सॉल्व करना पड़ेगा, फिर w इज इक्वल टू y रेज टू द पावर x का log लेके सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से dv अपॉन dx फाइंड करना होगा, यहाँ से ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। याद आया? हाँ, नहीं उसको रेसिप्रोकल कैलकुलस से कैंसिल हो जाएगा, देन वहाँ से हम लोग को मिल जाएगा dy by dx। यस, बहुत लंबा हो जाएगा। yes, it's quite lengthy. So I think this is very clear to everyone. This is it for today, and please revise all the things. Please revise all the things before taking next class. अभी कोई डाउट है तो बताइए प्लीज।
Sir, I have texted you in WhatsApp about my. यस यस यस, मैं देख लूंगा. Okay. जितेंद्र, आपका टोटल डेरिवेटिव का कोई डाउट? Sir, I will ask if in the next class. Okay, no problem. Sir, So I have thank a you very. request to make. Yes, Adarsh, please tell me. Sir, I do not want to trouble you, but can you please send us our this PPT, sir? Because in the group, all means everything is piled up, and there are many things. It is difficult to search, and also if we get PDF, we can store it somewhere and access it more easily. Beta, in Google Classroom, I am uploading these class notes as a PDF file. आपको पता नहीं है? Download from there, sir. आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं? No, sir. It's not downloadable. No, sir. ठीक है, अब से मैं जितने भी फाइल्स को अपलोड करूंगा सबको डाउनलोडेबल कर दूंगा, और जैसे टाइम मिलेगा पुरानी वाली को भी मैं डाउनलोडेबल कर दूंगा. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So thank you very much, all of you. Have a good day. Thank you, sir. Thank you. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.